Uh, so today we are going to discuss some general features of anemias and classification of anemias. More importantly, before starting anemias, there are certain things that need to be, understood very well. इनका एक जनरल कॉन्सेप्ट बन जाए तो वो फिर आगे बड़ा यूजफुल रहता है, इसलिए थोड़ी कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो एनीमिया से पहले बिल्कुल दे शुड बी क्रिस्टल क्लियर फॉर दी स्टूडेंट्स. Starting from zero, that blood is, it is a circulating type of connective tissue. It is a connective tissue that circulates within the blood vessels in human beings. Blood is composed of major domains: the formed elements, that is the cellular component of the blood, and these cells, they are basically red blood cells, white blood cells, and platelets. So, and then we have the liquid component of the blood in which these cells are suspended. The liquid part of the blood, the fluid component of the blood, is called as plasma, which is basically composed of different type of proteins, lipid, carbohydrate, mineral, water, enzymes, water, nitrogenous waste products, metabolites, and so many things. They are usually present in the plasma. So different definitions are used, and we need to know it. Proteins basically are of three types: albumin, globulin, and fibrinogen. Then we have different type of lipids, including low density lipoprotein, very low VLDL, HDL, cholesterol, glycoproteins, carbohydrates, different type के glycosaminoglycans हैं, glycoproteins हैं, simply glucose या fructose के molecules हैं. So there are so many things which are present in the plasma, and together with these cells, they constitute what is called as whole blood. So whole blood is basically, refers to cell plus plasma. So it is basically whole blood. This term is used when we have both cells and plasma. The whole blood term is used. ब्लड में से प्लाज्मा जो है वो ड्राइव भी किया सकता है इफ द सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द होल ब्लड. मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं. सबसे इजीएस्ट टेक्निक तो ये होती है कि लाइक ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर दें और उसके बाद उसको स्क्वीज करके सेल्स को जो है वो सेटल हो जाते हैं, वो हटा दें और ऊपर से जो सुपरनेटेड प्लाज्मा जो है वो निकाल लेते हैं. तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज प्लाज्मा. यानी प्लाज्मा के ये हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा इज द blood minus cell, whole blood minus cells. All these cells like WBCs, RBCs, and platelets, if they are removed from the blood, तो जो चीज बचेगी वो प्लाज्मा बन जाएगी. More importantly, ये प्लाज्मा जो है it contains proteins including coagulation factor, तो it can coagulate, it can form a coagulum. और अगर इसी प्लाज्मा से लेट्स से कि हम coagulation factor तो प्रोटीन्स निकाल दें, fibrinogen and other coagulation factors, if they are removed, और वो फिर जो चीज बचेगी that is usually called as serum. So let's say कि एक टेस्ट जो हम होल ब्लड पे करते हैं या कोई एक इन्वेस्टिगेशन जो हमें परफॉर्म करनी होती है प्लाज्मा में, या कुछ जो है सीरोलॉजिकल स्टडीज करनी होती है, तो उनके लिए डिफरेंट सैंपल यूज किए जाते हैं. कहाँ पे ब्लड यूज करना है, कहाँ पे प्लाज्मा यूज करना है, कहाँ पे सीरम को डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज करना है. इसके लिए ये दो तीन डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो बेसिकली डिफाइन की जाती हैं. सो यू कैन इमेजिन कि अगर होल ब्लड है हमारे पास, लेट्स से कि 1 ml के करीब, तो 1 cc अगर होल ब्लड है तो उसमें से लाइक 0.45% प्लाज्मा होगा, या सेल्स होंगे, और 0.55 cc है वो प्लाज्मा होगा. फिर मतलब इसी 0.5 cc में से अगर आप प्रोटीन्स, इम्पोर्टेंटली फिब्रिनोजन और कोएगुलेशन फैक्टर्स निकाल दें तो लेट्स अमाउंट जो सीरम का बचता है वो 0.3-0.4 ml बच जाता है. तो होल ब्लड में से इतना सीरम बनता है. अब ये सीरम जो है इसमें एल्बुमिन होती हैं, ग्लोबुलिन्स होती हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीरम में होती हैं. तो अब जो सीरोलॉजिकल स्टडीज करनी हो, किसी की एंटीबॉडीज देखनी है, एंटीजेंस देखनी है,
या एंजाइम की स्टडीज करनी है, तो ये सारी चीजें जो है वो सीरम पे बेसिकली परफॉर्म की जाती है। दे आर नॉट परफॉर्म्ड ऑन द होल ब्लड और दे आर नॉट परफॉर्म्ड इवन ऑन द प्लाज्मा, दे आर यूजुअली परफॉर्म्ड ऑन द सीरम। तो ये दो तीन डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और ये होनी चाहिए। वाइल लेट्स गो टू यानी कि अगर हम चले इसके ऊपर के एनीमिया को हम जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करें, तो यू कैन सी कि एनीमिया के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेड ब्लड सेल्स। इनको थोड़ा सा इसके जनरल कंसिडरेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मोस्ट न्यूमरस मोस्ट प्रीडोमिनेंट सेल्स हैं ब्लड सेल्स, वो हैं आरबीसीज। इसी वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। रेंज फ्रॉम 4.3 to 5.9 into 10 power 6 per microliter in adult male, roughly correspond to 4.3 to 5.9 millions per cubic millimeter of blood। यानी एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में अराउंड 4 to 5 मिलियन आरबीसीज, 40 से 50 लाख आरबीसीज जो है वो होते हैं एडल्ट मेल में। अच्छा, फीमेल में थोड़ा सी ये जरूरी है इसके लिए रेंज डिफाइन करना कि एडल्ट मेल में, क्योंकि फीमेल में वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बच्चों में वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। फिर कुछ ज्योग्राफिकल वेरिएशन भी आती है, उसके रेफरेंस रेंज की फिर हम बाद में बात करेंगे क्या होते हैं। So red blood cells, they are red because they contain hemoglobin. And what is basically hemoglobin? You all know very well. It is an oxygen carrying molecule which is present in the blood. It is concentrated, sequestered within the, red blood cell. And almost 80% of the cytoplasm of red blood cell is basically, uh, occupied by the hemoglobin. And hemoglobin in turn is made up of iron, porphyrins, and प्रोटीन मॉलिक्यूल। कौन सी प्रोटीन होती है इसमें? वो ग्लोबिन चेन होती है। एंड ग्लोबिन भी फिर वो बीटा ग्लोबुलिन्स जो हैं डिफरेंट टाइप की होती है, अल्फा होती है, बीटा होती है, चेन जो होती हैं वो। फिर इसके अलावा लाइक हमारे पास कभी हेमोग्लोबिन एस होती है, कभी हेमोग्लोबिन एडल्ट होती है। तो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं जो इनकी चार प्रोटीन की कंपोजिशन से जो है वो हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल बनता है। रफली द लाइफ एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी ऑलमोस्ट 120 डेज। और ये 120 दिन गुजारने के बाद ये जो है ये खत्म हो जाते हैं आरबीसीज। दे आर बेसिकली सिंथेसाइज फ्रॉम द प्रीकर्सर सेल्स विद इन द बोन मैरो। दे आर यूजुअली सिंथेसाइज इन द बोन मैरो, लेकिन कभी कभी ये एक्स्ट्रा मेडुलरी साइट्स, खासतौर पर लिवर, स्प्लीन या दूसरे लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं उनमें भी एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस हो सकती है अगर आरबीसीज की मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो। जब ये अपना 120 दिन का टाइम पीरियड गुजार लेते हैं तो दी सेनेसेंट या ओल्डर आरबीसीज दे आर सिक्वेस्टर्ड इन द स्प्लीन, लिम्फ नोड, टिश्यू मैक्रोफेजेस। वहाँ पे इनको फेगोसाइट करके इनके प्रोडक्ट्स को जो है वो निकाल लिया जाता है। यू नो So this is a scheme that is basically showing the it starts from, you can see a common hematopoietic stem cell। और ये कॉमन हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल फिर जो है वो माइलाइट प्रोजेनिटर सेल बनाता है। और ये माइलाइट प्रोजेनिटर सेल जो है, या फिर ये लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल बनाता है। और फिर ये माइलाइट प्रोजेनिटर सेल जो है वो अगेन डिफरेंशिएट होता है इनटू मेगाकैरियोसाइट या इरिथ्रोइड प्रोजेनिटर सेल्स। और फिर ये डिफरेंशिएट करके या आरबीसीज या प्लेटलेट्स बनाते हैं। जबकि यही माइलाइट प्रोजेनिटर सेल जो है वो ग्रेनुलोसाइट प्रोजेनिटर सेल बना सकता है। फिर वो डिफरेंशिएट करके माइलोब्लास्ट या मोनोब्लास्ट बनाए, और फिर वो अल्टीमेटली बेजोफिल, इजोनोफिल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस वगैरह इस तरह के सेल्स बनाते हैं। तो ऑल दिस इज बेसिकली इफ इट इज अकरिंग विद इन दी बोन मैरो। तो आरबीसीज क्या ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है स्टेज मेगाकैरियोसाइट एरिथ्रोइड प्रोजेनिटर सेल से एरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन, ये एक सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें भी मल्टीपल स्टेप होते हैं। यानी इससे पहले नॉर्मोब्लास्ट बनते हैं, माइलोब्लास्ट बनते हैं, पता नहीं कौन कौन से सेल्स बनते हैं। तो अल्टीमेटली फिर ये आरबीसीज बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ये थोड़े से आरबीसीज के नो जो सिंथेसिस के स्टेप्स हैं, लाइक प्रोइथ्रोब्लास्ट होता है, देन बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट, देन ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट, फिर पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोसाइट। अब ये इरिथ्रोसाइट हो जाता है ब्लास्ट सेल से, अब ये मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। देन रेटिकुलोसाइट जिसको हम कहते हैं, और फिर उसके बाद ये एक फॉर्मल एक जो है वो
एरिथ्रोसाइट की फॉर्म में आ जाता है। और ये फॉर्म जो है वो मेच्योर फॉर्म है, जिसमें ये बोन मैरो से बाहर निकलता है, यूजुअली एंटर हो जाता है इनटू दी ब्लड स्ट्रीम। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इवन सर्कुलेशन में हमें इससे प्रिमिटिव सेल्स जो हैं वो भी कभी कभी मिलना शुरू हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है और कितने आरबीसी की जरूरत है। सो अ नॉर्मल आरबीसी which is in the peripheral circulation, it looks like something like this. So if you can see that most of the RBCs are round to oval in shape, sorry, they are round to oval in shape, and strikingly इनका साइटोप्लाज्म जो है वो बड़ा हेमोग्लोबिन की वजह से बिल्कुल रेड कलर का नजर आ रहा है। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये एक स्लाइड स्टेन की हुई है। ब्लड निकालने के बाद, वेना सेक्शन करने के बाद उसको स्लाइड पे स्प्रेड करके एयर ड्राई करके फिक्स करके और फिर उसके बाद उसको स्टेन किया जाता है। डिफरेंट स्टेन है, फील्ड स्टेन है, लीशमैन स्टेन है, जिम्सा स्टेन है। तो बेसिकली ये एक फील्ड स्टेन से स्लाइड स्टेन की हुई है। इसमें अगर आप देखें तो इम्पोर्टेंटली हमें क्या नजर आ रहा है कि साइटोप्लाज्म अच्छा खासा है इसमें, और न्यूक्लियस ऑब्वियसली बात है कि नहीं होता है, लेकिन जब न्यूक्लियस निकल जाता है तो ये सेंटर में जो एरिया है आरबीसीज के, ये पेल हो जाता है। इट डज नॉट कंटेन एनी हेमोग्लोबिन सेंट्रल एरिया। हेमोग्लोबिन जो है वो इसके सारे पेरिफेरी पे है। ठीक है। तो ये बेसिकली इसका हेमोग्लोबिन कंटेंट है, ये इसका साइज है आरबीसीज का। ये आरबीसी की नॉर्मल शेप होती है। यूजुअली ये जो एरिया ऑफ सेंट्रल पिलर है, it does not extend for more than one third of the size of the RBC। अगर ये आरबीसी के साइज से वन थर्ड ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि एरिया ऑफ सेंट्रल पैलर जो है वो एक्सटेंड हो गया, यानी कि हेमोग्लोबिन काउंट रिलेटिवली जो है वो कम होना शुरू हो गया, या हेमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो कम होना शुरू हो गया है। सर्कुलेशन में जब हम आरबीसीज को देखते हैं तो यूजुअली कंपेयर करते हैं इनका साइज विद द साइज ऑफ ए मेच्योर लिम्फोसाइट। और ये कहा जाता है कि आरबीसीज दे आर जस्ट स्मॉलर देन अ मेच्योर लिम्फोसाइट। तो मोस्ट ऑफ दी सेल्स, जब मतलब दो चीज हमें देखनी बेसिकली इसमें आरबीसीज की, एक तो ये कि आरबीसीज का अपना साइज कैसा है, और नंबर टू ये कि आरबीसीज में हेमोग्लोबिन कंटेंट कैसा है। ये दोनों चीजें आरबीसी की मॉर्फोलॉजी में डिस्क्राइब की जाती हैं। और इसको फिर हम देखेंगे अभी कि ये जो हिमेटोलॉजिकल एनालिसिस हैं उसमें ये किस तरह से ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो इफ यू सी हियर, तो ऑलमोस्ट कोई 50+ आरबीसीज होंगे इस फील्ड में, जबकि सिर्फ हमें दो डब्ल्यूबीसी नजर आ रहे हैं, एक न्यूट्रोफिल और एक लिम्फोसाइट। पेरिफेरल सर्कुलेशन में यूजुअली रेशियो यही होती है। लेकिन अगर ऑन कंट्रारी अगर हम बोन मैरो देखें तो बोन मैरो में हमें यूजुअली जो रेड बोन मैरो है उसमें इवन आरबीसीज इतने ज्यादा नजर नहीं आते जितने के न्यूक्लिएटेड सेल्स और माइलोब्लास्ट और माइलोसाइट और न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट के प्रीकर्सर सेल्स हमें ज्यादा नजर आ रहे होते हैं। आरबीसीज भी इसमें होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, इसलिए कि जब हम डिफाइन करते हैं एनीमियाज की में बोन मैरो पिक्चर को, तो हम कहते हैं कि वो लाइक इफ इट इज हाइपर सेलुलर, तो हाइपर सेलुलैरिटी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, डब्ल्यूबीसीज के प्रीकर्सर सेल ज्यादा हैं या आरबीसीज के प्रीकर्सर सेल ज्यादा हैं। सिमिलरली हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ल्यूकीमोइड हाइपर सेलुलैरिटी है, हाइपरप्लेजिया है, या एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया है। So in general, if we see a bone marrow, so what we usually see is some fat cells। फैट होती है, कुछ बोनी ट्रैबेक्यूली भी होते हैं, लेकिन काफी सारे सेल्स होते हैं। स्पेशली ये जो सेल्स हैं, बड़े बड़े सेल्स, जाइंट सेल्स, लार्ज न्यूक्लियस, जो कराते हैं मेगा कैरियोसाइट। और ये मेगा कैरियोसाइट बेसिकली जिनके फ्रेगमेंट चिप ऑफ होते रहते हैं और ये प्लेटलेट्स बनाते रहते हैं। ये इतने बड़े सेल्स होते हैं मेगा कैरियोसाइट के, सिर्फ बोन मैरो में ही रहते हैं। दे यूजुअली डू नॉट एंटर द पेरिफेरल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे हमें ये इस तरह से नजर आता है। लेकिन व्हेन इट बिकम्स हाइपर सेलुलर, तो हाइपर सेलुलरिटी में यू कैन सी कि सेलुलरिटी इंक्रीज हो गई है। कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है कि इसमें से फैट खत्म होना शुरू हो गई है। येलो बोन मैरो इज रिप्लेस्ड बाय दी हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, डिफरेंट स्टेजेस के हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। अब इसमें ये इस जाहिर बात है, इस मैग्निफिकेशन पे तो ये कहना मुश्किल है कि ये इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया है या ल्यूकोसाइट हाइपरप्लेजिया है, यानी बोन मैरो जो है वो ज्यादा बना रहा है आरबीसीज के प्रिकर्सर सेल्स या डब्ल्यूबीसी प्रिकर्सर सेल। ये बड़ा वेरिएबल होता है, फिर उसको हम ज्यादा थोड़ा सा जूम अप करके फिर देखते हैं तो फिर हमें डिफरेंट चीजें नजर आती है। लेकिन यहाँ से अब हम थोड़ा सा आरबीसीज के इंडाइसिस को डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर हैविंग दैट मच डिस्कशन अबाउट रेड ब्लड सेल,
थोड़ा सा उनके जो वैल्यूज हैं और उनके से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं, खासतौर पे वो टर्मिनोलॉजी जो सीबीसी रिपोर्ट में खासतौर पे एनीमिया को डिफाइन करने के लिए यूज होती है, उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। Anemia is generally defined as a reduction of the total circulating red cell mass, either RBCs count और द हेमोग्लोबिन कंटेंट। ये दोनों कम हो जाएं या कोई एक चीज कम हो जाए, या आरबीसी काउंट कम हो जाए, जो हमने देखा था कि अराउंड 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर था। इफ इट बिकम्स लेट्स से 3 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आरबीसी जो है वो कम हो गई, या आरबीसी तो नॉर्मल हो, काउंट नॉर्मल हो उनका, लेकिन उनके अंदर जो हेमोग्लोबिन का कंटेंट है वो कम हो जाए, जिसको हम डिफाइन करने के लिए मुख्तलिफ टर्म्स यूज करते हैं, वो भी हम टर्म आगे देखेंगे। तो ये आइदर आरबीसीज आर गोइंग डाउन और हेमोग्लोबिन आर गोइंग डाउन किससे? रेफरेंस रेंज से। रेफरेंस रेंज क्या होती है? रेफरेंस रेंज ये होती है कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ऑन द नंबर ऑफ आरबीसीज एंड हेमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड, और उनमें से दो तीन फैक्टर ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एज। मसलन ये कि न्यूनेट में आरबीसी ज्यादा होते हैं, जितना ओल्ड होता जाता है पेशेंट उसके आरबीसी से काउंट उतना कम होता चला जाता है। सिमिलरली मेल में आरबीसी ज्यादा होते हैं, जनरली मेल में, क्योंकि मेल आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, तो सारी वैल्यूज जो है वो इनकी यूजुअली थोड़ी सी फीमेल के मुकाबले में ज्यादा ही होती हैं। देन वी हैव जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के एक आपने शायद सुना होगा, एक होता है फिजियोलॉजिकल हाइपोक्सिया। जो लोग पीपल हु आर लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, दे आर हैविंग हायर नंबर ऑफ आरबीसीज इन देयर ब्लड, क्योंकि उनकी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, तो उसको कंपनसेट के लिए कि कंपनसेट करने के लिए आरबीसीज का नंबर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सिमिलरली अगर लाइक पीपल हु आर लिविंग इन एबटाबाद और हुंजा और लाइक और चित्राल वगैरह, तो वो ज़्यादा गोरे चिट्टे खूबसूरत से इसलिए होते हैं कि वो जो है वो लाइक ज्यादा आरबीसीज कैरी कर रहे होते हैं वो अपने, इसलिए वो सुर्ख सफेद नजर आते हैं। जबकि पीपल हु आर लिविंग एट द सी लेवल और इवन बिलो द सी लेवल, वो उनमें लाइक आरबीसीज की को वेल नंबर जो है वो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना ज़्यादा है, या इतना नॉर्मल के अराउंड नॉर्मल है, कि उनको ज़्यादा आरबीसीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये फिजियोलॉजिकली जो पॉलीसाइथीमिया है, नंबर ऑफ आरबीसीज इंक्रीज हो जाते हैं इन द पीपल हु आर लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं जो आरबीसीज के नंबर को लाइक अफेक्ट कर रहे होते हैं। यानी एक पेशेंट, एक पर्सन जो लेट से कराची में रहता है, उसका हेमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट अगर है कोई, मसलन उसका आरबीसी काउंट आ रहा है लेट से 5 मिलियन, और हेमोग्लोबिन उसकी आ रही है 12 ग्राम%, तो वो हो सकता है कि वो एनेमिक हो, कंसीडर हो दिस वैल्यू इन हुंजा और इवन एट हायर एल्टीट्यूड्स, लेकिन कराची के लिए नॉर्मल वैल्यू होगी। तो सिमिलरली इसी तरह मेल और मेल जेंडर और एज जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो हम एक रेफरेंस रेंज निकालते हैं जो करेक्ट की जाती है इन टर्म्स ऑफ एज, in terms of gender and in terms of the area where the person is living, और इन तीनों चीजों को मिला के हम फिर ये कहते हैं कि ये एक रेफरेंस रेंज है, एंड दीज आर द रेफरेंस रेंजेस ऑफ डिफरेंट आरबीसी इंडाइसेस जो कि शो की गई हैं। यू कैन सी हेमोग्लोबिन की रेंज जो है वो 13.6 to 17.2 है इन adult male, while in female it is 12 to 15. Then we have this hematocrit. Hematocrit refer to percentage of plasma to cells, कितने परसेंट सेल्स हैं, कितने परसेंट प्लाज्मा है। ब्लड, होल ब्लड इज मेड अप ऑफ सेल एंड प्लाज्मा। तो ये लेट्स से कि 39 to 49% है नॉर्मल वैल्यू इन मेल। मतलब ये हुआ कि अप टू 49% ऑफ ब्लड इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स। बाकी जो 51% है वो किससे बना होगा? वो जाहिर बात है कि वो प्लाज्मा से बना हुआ होगा। यानी जितना ये कम होती जाएगी हिमाटोक्रिट की वैल्यू, ये सिग्निफाई करेगी कि सेलुलर काउंट जो है वो कम हो रहा है, और जाहिर बात है, ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे प्रीडोमिनेंट सेल है जो मिलियंस में है वो आरबीसीज है। तो दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स नंबर ऑफ आरबीसीज के वो कितने कम हो रहे हैं।
नंबर ऑफ आरबीसी को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पास एक और वैल्यू होती है, एक और इंडेक्स होती है जिसको हम कहते हैं रेड सेल काउंट, which is 4.3 to 5.9 millions in males, while 3.5 to 5 in females. तो ये जो वैल्यू है, ये नंबर ऑफ आरबीसी, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ आरबीसी जो है वो इसमें बता रहा होता है. देन वी हैव दिस रेटिकुलोसाइट काउंट. रेटिकुलोसाइट आरबीसी जब मैच्योर हो रहे होते हैं, तो जब आरबीसी बनने से जब जस्ट बिफोर जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट. जब ज्यादा डिमांड होती है और ज्यादा चाहिए होते हैं आरबीसीज, तो इवन जो रेटिक सेल्स हैं, रेटिकुलोसाइट्स जो हैं, वो भी सर्कुलेशन में आना शुरू हो जाते हैं. अप टू 1.5% ऑफ ऑल दी आरबीसीज रेटिकुलोसाइट काउंट हो सकते हैं. दिस इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेटिक काउंट. इनको देखने के लिए एक अलग स्टेन करते हैं. लेकिन अगर ये अप टू 5% से ज्यादा हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि नाउ द पर्सन इज हैविंग रेटिकुलोसाइटोसिस. नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट जो है वो इंक्रीज हो गए. तो ये कुछ चीज़ें जो हैं, ये स्पेसिफिकली आरबीसीज को सिग्निफाई कर रही होती हैं, मेजर कर रही होती हैं. सीबीसी रिपोर्ट में मेरे ख्याल में ये चीज़ें देखी होंगी. इनके यूनिट भी इंपॉर्टेंट है और इनके नाम भी. लाइक मीन सेल वॉल्यूम. मीन सेल वॉल्यूम रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल आरबीसी. थोड़ी बहुत डिस्पैरिटी हो सकती है, वेरिएशन हो सकती है साइज ऑफ द आरबीसीज में, लेकिन एमसीवी रेंज करेगा बिटवीन समवेयर बिटवीन 82 to 96 फेंटोलीटर. 82 to 96 फेंटोलीटर ये एमसीवी रेंज करता है. अगर कोई चीज़ 82 से कम है, तो इसका मतलब है कि सेल का वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है. अगर इसी तरह से अगर कोई चीज़ 96 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है किसी में एमसीवी की, तो दैट मीन्स के जो सेल का एवरेज साइज है वो 96 से ज़्यादा है, सेल ज़्यादा बड़े साइज के बन रहा है, स्मॉल साइज के या बड़े साइज के बन रहे हैं. और अगर वैल्यू फॉल कर रही है समवेयर बिटवीन 82 to 96, तो दैट मीन्स कि जी नॉर्मल साइज के आरबीसीज हैं. थोड़ी बहुत वेरिएशन तो it is allowed. Then we have this MCH, mean cell hemoglobin, which is usually measured in picogram. किसी सेल में आरबीसी, किसी आरबीसी में हेमोग्लोबिन ज्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है. लेकिन एवरेज जो है हमारे पास वो आती है, मीन जो हमारे पास आती है कि पर सेल कितनी हेमोग्लोबिन जो है वो एक आरबीसी में है. एंड दैट इज यूजुअली समवेयर बिटवीन 27 to 33. दीज वैल्यूज आर सेम फॉर मेल एंड फॉर फीमेल एज वेल. Anything which is less than 27 will be considered as less hemoglobin count. या number amount of hemoglobin present in the cell is lesser than normal. और अगर 33 से ज्यादा है, जो यूजुअली नहीं होती है, तो दैट मीन्स कि जी वो जो एमसीएच है वो ज्यादा है, तो दैट मीन्स कि हेमोग्लोबिन ज्यादा है सेल के अंदर. Similarly, we are having another term which is called as mean cell hemoglobin concentration, MCHC. और ये बताती है कि सेल में हेमोग्लोबिन कितनी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मीन कितना है उसका. दैट इज यूजुअली रेफर टू एज measured in gram per deciliter, and the value ranges from 33 to 37 gram per deciliter. Again, ये MCH कम होगी तो MCH भी कम होगी. एमसीएचसी यूजुअली एमसीएच को फॉलो कर रही होती है, एक्सेप्ट फॉर हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, जहाँ पे एमसीएच की थोड़ी एमसीएचसी की वैल्यू ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है. बहरहाल ये हम हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस में डिस्कस करेंगे. लास्ट इंडेक्स ऑफ द आरबीसी इज कॉल्ड एज रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, measured as represented as RDW. It is basically a ratio, एक कंपैरिजन है. तो इसलिए इसका यूजुअली इसका कोई यूनिट नहीं होता है. ये है, ये आरडीडब्ल्यू क्या बताता है कि ये एक ग्राफ बेसिकली प्लॉट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि डिफरेंट साइज के आरबीसीज हैं और वो डिफरेंट ग्राफ पे डिफरेंट पोजीशन एक्वायर कर रहे होते हैं. तो जब वो एक्वायर कर रहे होते हैं डिफरेंट पोजीशन, तो जितनी ज्यादा डिस्पैरिटी होगी आरबीसीज के साइज में, कुछ आरबीसी साइज नॉर्मल हैं, कुछ कम है, कुछ बड़े हैं, तो फिर जाहिर बात है कि उतनी ज्यादा इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की विड्थ बढ़ती चली जाएगी. इतनी ज्यादा ये ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे ग्राफ के ऊपर प्लॉट जब करेंगे. तो इसलिए ये आरडीडब्ल्यू इनडायरेक्टली एक मेजर कर रहा होता है कि ये आरबीसीज का साइज जो है वो एक दूसरे से वेरी कर रहा है, एक जैसे साइज के आरबीसीज नहीं है. दिस इज यूजुअली प्रेजेंटेड एज आरडीडब्ल्यू. नॉर्मल वैल्यूज आर 11.5 to 14.5. यानी अगर वैल्यू 14.5 से ज्यादा आ रही है, तो दैट मीन्स कि आरबीसीज के साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन है.
तो ये बेसिकली एक टर्म यूज करते हैं हम ये शो करने के लिए कि आरबीसीज का जो साइज है वो किस तरह का है। तो साइज को जब हम मेजर कर रहे होते हैं, साइज को हम फोकस कर रहे होते हैं आरबीसीज के, तो तीन टर्म यूज करते हैं: नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक। नॉर्मोसिटिक यानी नॉर्मल साइज आरबीसीज, माइक्रोसिटिक यानी स्मॉल साइज आरबीसीज, मैक्रोसिटिक यानी लार्ज साइज आरबीसीज। और ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें दो तरफ से पता चलेगा। एक तो ये कि हम जो मीन सेल वॉल्यूम है, एमसीवी, वो वैल्यू हम देखेंगे कितनी है। वो नॉर्मल है तो नॉर्मल साइज आरबीसी है, अगर वो लेस देन नॉर्मल है तो दैट इज स्मॉल साइज आरबीसी, अगर वो मोर देन नॉर्मल है तो दैट विल बी लार्ज साइज आरबीसी। यानी जो हमने इसमें देखा था एमसीवी, जो 82 टू 96 फेंटोलीटर हमारे पास थी वैल्यू, अगर वो 82 से कम है तो हम कहेंगे कि ये माइक्रोसिटिक स्मॉल साइज के आरबीसी है, और अगर वो 96 से ज्यादा है तो देन विल बिकम मैक्रोसिटिक या लार्जर साइज ऑफ आरबीसी। सिमिलरली हेमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ए सिंगल आरबीसी, वो भी हम देख सकते हैं। उसके लिए दो टर्म यूज करते हैं यूजुअली: नॉर्मोक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक यानी नॉर्मल एचपी कंटेंट, एमसीएच नॉर्मल है तो नॉर्मोक्रोमिक होगा। अगर एमसीएच या एमसीएचसी या दोनों कम है तो दैट शोज के जी पेशेंट जो आरबीसीज हैं वो हाइपोक्रोमिक हैं। हाइपोक्रोमिक, क्रोमिसिटी जो है उनकी, जो क्रोमिसिटी यानी कलर जो उनका आ रहा है हेमोग्लोबिन की वजह से, वो कम होता चला जा रहा है। ये एमसीएच और एमसीएचसी से हमें मिलेगा। अच्छा, ये पेरिफेरल फिल्म में कैसे नजर आएगा? पेरिफेरल फिल्म में ऐसे नजर आएगा कि इनका जो एरिया ऑफ सेंट्रल पेलर है उसको हम देखेंगे। अगर सेंट्रल पेलर जो है वो नॉर्मल है, वन थर्ड से कम है आरबीसी के साइज से, तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन कंटेंट है। लेकिन अगर वो ज्यादा हो गया है पेलर, तो जाहिर बात है कि यार हेमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली हाइपोक्रोमिक आरबीसी। फिर हम ये दो टर्म और इस्तेमाल करते हैं: एनाइसोसाइटोसिस। एनाइसोसाइटोसिस यानी वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसी। कुछ आरबीसी नॉर्मल साइज के हैं, कुछ बड़े साइज के हैं, कुछ कम साइज के हैं। एंड डेफिनेटली बिल्कुल सही। इसको हम कैसे मेजर करेंगे? इसको हम कैसे सीबीसी में कैसे देखेंगे? सीबीसी में देखने के लिए हमें मिलेगी इसकी आरडीडब्ल्यू, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। अगर वो मोर देन नॉर्मल होगी तो दैट मीन्स के आरबीसी के साइज में ज्यादा वेरिएशन है। एन आइसोसाइटोसिस, एन नहीं है, एब्सेंट है, आइसो सिमिलैरिटी, साइटोसिस सेल के साइज में। सिमिलरली आरबीसी की शेप भी वेरी कर सकती है, और जब वेरिएशन एंड शेप को हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो यूजुअली हम टर्म यूज करते हैं पोइकिलियोसाइटोसिस। तो इफ यू सी हियर वी हैव यू नो आरबीसीज. These RBCs, they are of normal size. Most of the RBCs, they are having you can see normal size, normal shape. जो इनका सेंट्रल पैलर है वो वन थर्ड से एक्सीड नहीं कर रहे हैं, तो दे आर यूजुअली कॉल्ड एज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक आरबीसीज। अगर इसका कंपैरिजन हम इस सेल से करें, ये है हमारे पास एक लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट से अब जो आरबीसीज नजर आ रहे हैं, दे आर ऑफ मच स्मॉलर इन साइज, सो दे आर बेसिकली कॉल्ड एज माइक्रोसाइटिक। अच्छा, सिर्फ माइक्रोसाइट ही नहीं है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इनका जो सेंट्रल पैलर का एरिया है वो कितना एक्सटेंड कर गया है। ठीक है जी, सेंट्रल पैलर एक्सटेंड करिए। हेमोग्लोबिन तो लग रहा है कि एक पेरिफेरल रिम की फॉर्म में क्रोमिसिटी जो है वो मौजूद है, तो दैट इज आल्सो, दे आर आल्सो कॉल्ड एज हाइपोक्रोमिक आरबीसीज। नॉट ओनली माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक आमतौर पर हाइपोक्रोमिक के साथ एसोसिएट करती है एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ कंडीशंस। सो दिस इज बेसिकली माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज। यहाँ पे आरबीसीज की शेप थोड़ी सी चेंज हो रही है। यू कैन सी कि ये कुछ थोड़े से सिकल शेप के आरबीसीज आते चले जा रहे हैं, कुछ टारगेट सेल बन रहे हैं, जैसे लगता है कि टारगेट सेल है। तो ये बेसिकली शो कर रही है पोइकिलोसाइटोसिस को। वेरिएशन इन साइज तो है ही है डेफिनेटली, हाइपो माइक्रोसिटिक भी है, हाइपोक्रोमिक भी है, और साथ साथ जो है वो आरबीसीज जो है वो शेप भी उनकी बड़ी वेरी कर रही होती है। दिस इज कॉल्ड एज पोइकिलोसाइटोसिस। इसको हम सिर्फ पोइकिलोसाइटोसिस तक फोकस करें अभी, इसको हम सिकल सेल पे नहीं कर जाते हैं, बाद में कभी देखेंगे इसको। लेकिन अगर यहाँ देखें इस तस्वीर में, तो यू कैन सी ये है आरबीसी, और अगर आप ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, अगर इसमें आप देखें तो दो चीजें बड़ी स्ट्राइकिंगली नजर आ रही है। नंबर वन, एक तो इसका अगर लिम्फोसाइट के साथ हम इसका कंपैरिजन करें तो लिम्फोसाइट के तकरीबन बराबर है, बल्कि ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा साइज का हो रहा है आरबीसी। तो ये हैं लार्जर साइज आरबीसी, लार्जर देन नॉर्मल, दे आर कॉल्ड एज मैक्रोसाइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है इन मैक्रोसाइट्स की,
इस मैक्रोसाइट को अगर हम इस एक आर्म आरबीसी से कंपेयर करें, तो व्हाट वी विल सी कि देयर इज नो एरिया ऑफ सेंट्रल पैलर usually in the macrocyte. तो macrocyte usually lack an area of central pallor and they are larger in size. They are macrocyte. तो अब ये इसकी बेसिस पे हम एनीमिया को क्लासिफाई कर सकते हैं कि नॉर्मोसिटिक एनीमिया है, माइक्रोसिटिक एनीमिया है, या मसलन मैक्रोसिटिक एनीमिया. बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया. क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया के लिए हमें थोड़ी सी ज़रूरत होती है अंडरग्रेड लेवल पे ये पता करने की कि एनीमिया हो क्यों रहा है. तो उसकी जो इटियोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द आरबीसी कि वो माइक्रोसिटिक है, नॉर्मोसिटिक है, या मैक्रोसिटिक है. ये थोड़ा सा ना पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको डायग्नोसिस बनानी होती है कि नॉर्मोसिटिक एनीमिया की क्या क्या कॉज हो सकती है, माइक्रोसिटिक की क्या कॉज है, मैक्रोसिटिक की क्या कॉजेज है. लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि अंडरस्टैंड करना है एनीमिया की पैथोजेनेसिस को, इम्पोर्टेंट ये चीज़ हमें फोकस करनी है कि एनीमिया हो क्यों रहा है, इस पेशेंट में एनीमिया क्यों हो रहा है, आरबीसीज क्यों कम हो रहे हैं, या हेमोग्लोबिन क्यों कम हो रही है किसी भी एक पर्टिकुलर केस में. तो उसके लिए फिर हमें एटियोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, वो अगली वीडियो में उसको हम शेयर करेंगे, और वो फिर उसके बाद इंडिविजुअल एनीमियाज को जो है वो करना शुरू करेंगे. सो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी. इम्पोर्टेंट हमें एम्फेसाइज करना है डिफरेंट टर्म्स विच आर यूज्ड to define different characteristic of RBCs, different indices which are used, और हर इंडेक्स की क्या सिग्निफिकेंस है ये हमें पता होना चाहिए. अगर ये चीज़ें पता होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर हम आ, जो है वो एनीमिया को थोड़ा सा हम ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.